Okay. Uh, Hello, everyone. This is Colonel VD Singh, and in this session, I am much delighted to be here. All the more reason because Meena Tilakaraj, ma'am, is also here. A very brainy person. The gray matter, the amount of gray matter which she has, I think, very few people have. So with that note, we start with the current topic, that is live-in relationship. Uh, when we talk about live-in relationship, guys, suddenly people start looking left and right as if it's a bull in a china shop. Uh, Whereas live-in relationship has been a part of the society. I mean, it is not something which has just emerged or popped out. It has Yeah, been a part. And Meena ma'am, I'm sure you will agree with me. When we talk about Indian society, you see, all over the world, live-in relationship is a part of culture. If at all somebody takes it culture in India, if some people look at it with a jaundiced eye. That there is something hush hush going on. Something is not right. In fact, in my humble opinion, and I've seen with my own eyes also, there is nothing wrong with live-in relationship as long as intentions are clear. So broadly, so broadly speaking, uh, uh, in this kind of a relationship, first of all, the hassles of marriage and other hassles, the logistics hassles and all that, they are done away with. People are There are two persons who are happily living with each other under one roof, emotionally connected, physically connected, and as far as their own tasks are concerned, as long as they understand their responsibilities, they carry out. If things work out, I'm sure the next step would be marriage. If things don't work out, then they move on. This is I mean, why do we make it so complicated? And yeah, I can imagine situations like, it is not necessary. Please remember, it is not necessary that in living relationship the two persons who are living under one roof have to be unmarried. I have seen there have been living relationship between the two married people. The lady is dissatisfied, and she's living with other person. One of them is married, both of them can be married, or both of them are not married at all. So the number of situations are there, but the the core issue is that live in relationship, to be successful, certain ingredients, I think those ingredients would be the mutual trust, very important. uh, when they depend on each other emotionally, psychologically, physically, finance also comes in between. Sometimes one partner becomes a little miserly and doesn't want to really participate in household affairs. So there's so many things uh, with which one has to move on. Either you move on once you break up after the living relationship, or if one is lucky, the next level is marriage. So what do you have to say, Madam Nina? या आपने बिल्कुल सही कहा जी कि it has been part of our culture. सारी, do you know India has been in fact the torchbearer of cultural progress, and the Indians, हम religion लोग बोलते हैं हिंदुइज्म, religion नहीं, Indian philosophy is the world's only जिसको बोलते हैं कि progressive philosophy, जी you know, and हाँ evolution based philosophy. आप जी ये सोचो जी कि हर 50 साल में एक नया देवी देवता आ जाता है, आजाद। which is according to the times. सही बात। हर 50-60 साल में एक नया रिचुअल पैदा हो जाता है, जी होता है बिल्कुल। नया रिचुअल जो ये एक है हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी की एक साजिश है
कि जहां उनको लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, वो कुछ नया डाल देते हैं कि चलो बिल्कुल ये भी सही। करो, जी तो इन द सेम वे, इवन एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, जी हम अपना कल्चर देखें कि देखो कुंती पुत्र जो थे, अभी कुंती पुत्र, एक पुत्र सूर्य से हुआ, एक चंद्र से हुआ, एक इससे हुआ, एक उससे हुआ, ये क्या है, ये क्या है, ये यू नो बिल्कुल तो एग्जाम्पल। ये सब कहाँ, तो तुम वो ग्रंथ पढ़ते हो, हैं, उनके आगे बैठते हो तो सर झुका के बैठते हो, नमस्कार करते हो, फिर उसके बाद दिया जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, बाद में प्रसाद भी करते हो, उनकी महिमा गाते हो, जी जी जी। और वही बात आपकी लाइफ में आती है तो उसको नकारते हो। वाई सो दिस डबल स्टैंडर्ड? या, so this is a very I would say very hypocritic kind of an attitude, बिल्कुल you know, सही। ढकोसला जिसको बोलते ढकोसला। हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तो further on, as the talk progresses, I will give you some more examples also, but जी for जी the time being, please take over, and would जी like to hear your जी opinion about it. जी। सो See, इसी बात में आगे बढ़ते हुए मैं ये सोचता हूँ कि इसके पक्ष में इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में कि right, अगर अगर दोनों की बुद्धि स्थिर हो, द मैन एंड द वुमन, इररिस्पेक्टिव कि वो उनका यानी स्टेटस जो है वो मैरिटल स्टेटस सिंगल है या डबल है जो भी है, द वेरी फैक्ट इज कि दो लोग एक रूफ के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों का कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन है इसलिए रह रहे हैं। right, छोटी जगह बड़ी जगह पे रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है। एक छोटे right, से कस्बे में अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो लोग तो बहुत शांति से रहेंगे, लेकिन उनके जो मोहल्ले वाले हैं वो उनकी जान खा जाएंगे एंड दे विल ड्राइव देम मैड कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग जो मॉरल पुलिसिंग कर रहते हैं वो कहेंगे कि घनघोर पाप हो रहा है, अब तो कलयुग, अब तो सत्यानाश होने वाला है, दोनों mm, इस तरीके से उसमें है। और जहां तक बड़े शहरों की बात है तो वहां पे nobody has the time to get into all this. People are perhaps more open minded. They say कि ठीक है यार, it's their business. I mean, I have no business to poke my nose at this. हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो कि देखा भी है सोसाइटी के अंदर रहते रहते, कि उसके कुछ जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इफ एट ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम कह सके, वो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि द मोमेंट टू इंडिविजुअल्स आर लिविंग एज लिव इन पार्टनर्स, फैमिली का सपोर्ट जो है, दोनों की फैमिली का सपोर्ट, उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अप्रीहेंशन रहता है कि ये हमारी इच्छा के खिलाफ या इस तरीके से कर रहे हैं तो लोग समाज में हमको क्या कहेंगे। एक थोड़ा सा ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। नेगेटिव एस्पेक्ट तब भी आता है जब वन ऑफ द पार्टनर्स ट्राइज टू बैक आउट ऑन सर्टेन इश्यूज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि एक टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना हमारी, कि कपड़े इधर उधर फेंक दिए, फला भी अब ये काम तो शी विल डू दिस, मैं तो नहीं करूंगा। ये भी चीजें थोड़ा सा इसके अगेंस्ट जाती हैं। एंड ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, कि भाई अगर हम रह रहे हैं तो हमारे खर्चे भी तो डिवाइड होने चाहिए ना। कई एक बार इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। एंड सबसे वर्स्ट चीज ये होती है व्हेन वन पार्टनर कंसील्स हिज और हर ओन आइडेंटिटी, कि किस इंटेंशन से उसने किया है। सो क्या होता है, द गर्ल एंड्स अप इन अ फ्रिज और इन अ सूटकेस। हमने देखा है ना पिछले एक दो सालों के अंदर इस किस्म की, and people try and connect all these issues politically motivated with the with this religion and एक पर्टिकुलर उसके बारे में बात करके, ये चीजों को थोड़ा सा से अलहदा रखना चाहिए। देखना ही चाहिए कि इनके इंटेंशन क्या है। इफ इंटेंशंस आर नॉट गुड, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड इट देयर विल बी अ ट्रेजेडी इन द एंड। सो वो ट्रेजेडी को बचाने के लिए मेरे ख्याल से ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एंड एक सिंसियर इंडिविजुअल विद अनदर सिंसियर इंडिविजुअल will surely result in a good live-in relationship. मेरा ये सोचना है। I
not only 100% but 200% agree with you on this. जी एक सिंपल सी बात है, जी जब आप बिजनेस करते हो ना, बिजनेस पार्टनर बनाते हो, जी जी तो आप न जाने कितने उसको कितने एस्पेक्ट्स, कितने पहलू आप पहले एग्जामिन करते हो, जी हाँ, करते राइट? हैं। एंड कितना एक बड़ा सारा उसका प्रपोजल बनाते हो, जी राइट? कि जी ये एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट सब कुछ करते हो, करते हैं। लेकिन वो सारा कुछ करते हो टू जी safeguard the business, which सही is बात। one aspect of life, that is finance. जी एंड मैरिज जो है वो तो लाइफ के सातों एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करती है, बिल्कुल सही बात। और उसमें तुम कुछ नहीं देखते हो, राइट? बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कहा। वो जो एक आउटवर्डली एक अट्रैक्शन होता है, या किसी ने सजेस्ट कर दिया कि ये हाँ आपके लड़के के लिए या लड़की के लिए ठीक है, हम तो परिवार को हाँ जानते हैं, ये है हाँ वो है, और तुम एवरी फैमिली हैज देयर ओन यार्डस्टिक। कोई देखता है जी हाँ फाइनेंशियली ठीक ठाक है, राइट? कोई देखता है जी हाँ सुना है बहुत अच्छे लोग हैं, सोशली ठीक ठाक है, हम्म, यू नो, एंड सो ऑन, यू नो। उसमें हर एक फैमिली हर एक चीज नहीं देखती, खाली वो अपने एक ब्लिंकर्स डाली हुई जो टनल व्यू जी है, बस जी जी उसमें से देखते हैं एंड उसमें से डिसाइड कर लेते हैं, पता लगता है बाद में 6 महीने बाद में स्यापा पै गया, यस है बिल्कुल ना? सही कहा मैम, आपने बहुत सही बात करी। लड़के और लड़की दोनों जो है, एक बहुत इसके सबसे अच्छी बात मैं ये दे पाता हूँ कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप पे रहे तो एक दूसरे की कम देखिए, सबके अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं। सो एक दूसरे की कमी को एक्सेप्ट करते हुए कितना वो घुल मिल के रह सकता है। अगर ये चीज नहीं वर्कआउट होती है तो मैरिज के झमेले में पड़ो ही मत, जस्ट मूव ऑन या मे बी, है ना? तो क्योंकि उसमें क्या होता है मैम, कई एक चीजें बाइज्ड होती हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, सो एंड सो फैमिली बहुत अच्छी है, किसके थ्रू पता लगा? उनके पड़ोसी से पता लगा जी, फला से पता लगा। अरे जो अफेक्टेड पार्टी है वो क्या है? द बॉय एंड द गर्ल। इफ दे आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, आई थिंक one is allowing enough time for each other to understand अपने हर हर कंपैटिबिलिटी। मैम इसको तो मैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट मान सकता हूँ, ऑन इमोशनल राइट, बेसिस, ऑन फिजिकल बेसिस, हर तरीके से। अगर ये नहीं है कंपैटिबिलिटी तो फिर पूरी जिंदगी क्यों खराब करो? बिकॉज हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा तो है नहीं कि आज मैरिज हुई और 24 घंटे के बाद तलाक। हालांकि तलाक होना जो है मजाक सा बना के रख दिया लोगों ने छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, बट जी, इसकी नौबत ही क्यों है तलाक होने की? अगर इफ दे आर लिव इन रिलेशनशिप फॉर अ मंथ और 2 और मे बी 6 मंथ्स, ऑल डिपेंड्स कि कब वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। जब वो समझ एग्जैक्ट, जाए कि हाँ हम बिल्कुल कंपैटिबल हैं हर तरीके से, और फिर वो मैरिज हो, आई थिंक दैट मैरिज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। वो यस। इसमें बाइसेस है तो Over here I will give you 2 3 examples प्लीज मैम बताइए। in nature. First of all, जी मैम। जी मैम। वीवर बर्ड के बारे में आपने सुना होगा। यस मैम। वीवर बर्ड जो होती है ना, जो होता है, सॉरी, होता है द मेल वीवर बर्ड, जी आपने वीवर बर्ड के नेस्ट देखे होंगे देखिए, पेड़ों पर, बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपने देखा होगा कुछ एक नेस्ट हाफ डन होते जी हाँ, ये भी देखा है। एंड कुछ एक नेस्ट फुल होते। होता है उसके होता है। पीछे कहानी क्या है पता है? इट्स अ वेरी नो मैम। ब्यूटीफुल थिंग। जी कि बताइए वो मैम। वीवर बर्ड जो है ना, जी पहले वो आधा बनाता है जी। एंड देन ही इनवाइट्स द फीमेल बर्ड। ओ टू वो कंप्लीट। फीमेल बर्ड उसमें आके चेक कर लेती है। ओ अगर 2 3 4 फीमेल बर्ड्स आई और उन्होंने देखा और उनको नहीं पसंद आया, तो वो छोड़ देता है और दूसरा बनाता है, ओ और फिर दैट्स उसको फिर से अच्छा बुलाता है, अच्छा। दूसरी अमेजिंग फीमेल्स को। एंड अमेजिंग। जब उसकी अप्रूवल हो जाती है, जी तब वो पूरा करता है उसको। दिस एंड इज सो फिर इंटरेस्टिंग। वो जो आधा अधूरा है ना जी बनाया हुआ, उसके आसपास ही जी होता है, जी। वो यूज करता है एज अ गार्ड पॉइंट। ओ जब वो अंडे देती है तो वहां, और वो जब वो खाना खाने जाती है या अपने इंसेक्ट्स पिक करने जाती है, तो वो वहां वो आधे वाले के ऊपर वो बैठ के वो
वॉच करता गार्ड है। करता है अच्छा अच्छा। नेस्ट को। इंटरेस्टिंग आई मैन, मीन दिस इंटरेस्टिंग। इज नेचर, ये नेचर है। नेचर है, हाँ। इसको हम हाँ, कैसे अच्छा। फिर राजस्थान में तो ये प्रचलित है, आपको शायद पता ही होगा। आप राजस्थान, आपका जो जी जी, हमारा तो रूट्स हैं रूट्स आपके मेवाड़ में, राजस्थान के हाँ। हैं, जी कि जी लड़का जब 14 साल का होता था तो उसको फेवरेट जो उसका पिता होता था, वो उसको अपनी फेवरेट देवदासी के पास ले जाता था बिल्कुल सही बात है। टू इंट्रोड्यूस हिम टू द वेज ऑफ द लाइफ, यस यस नॉट वेज यस। ऑफ द वर्ल्ड, वेज ऑफ नहीं, लाइफ। जी और जो लड़की होती थी उसको जी, दाई माँ के पास भेजा जाता था, सही हो रहा। तो दाई माँ उसको बताती थी सब, जी जी, राइट। तो बिल्कुल उसको सारी बातें बताती थी कि ऐसे होगा तुम्हारे साथ, ऐसे होगा। होगा। लेकिन आजकल ये मेरे दिमाग में आया एक इंसिडेंस को देखकर, कि एक लड़की है, तुमने देख ली, शादी करवा दी जी ओवरनाइट, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, without any integration within the family, without any deserving, जी कुछ किए बिना वो जी आधी प्रॉपर्टी की मालिक हो जाती है। जी जी। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, यस 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 and this has caused a lot of heartaches in many families, यस मैम। you know, कि वो 4-6 महीने में देखती है मेरा बनता नहीं है, तो वो क्लेम करने लग जाती है कि मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो। आई नो, लिटिगेशन एंड ऑल दैट सब हो जाता है शुरू में। लिटिगेशन में चला जाता है। आपको पता है ये कितना सीरियस इशू हो जाता है। बाप आई रे। एम द प्लेस वेर आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, उस घर में ये लिटिगेशन मैं देख रही हूँ, ओ कि माय गॉड। उन्होंने अपने लड़के की शादी एक लड़की से करवाई है, जी। एंड विद इन 5 to 6 months शी डिसाइडेड शी डजंट वांट टू स्टे विथ हिम, एंड उसने बवाल कर रखा है इन लोगों के लिए, सैड। demanding property and all that, and to such an extent that now the young man with whom she was married, he has fallen sick, and they have to guard him कि ये कहीं उसको कुछ खिला पिला ना दे, उसको मार ना जी दे, as a हाँ। widow she will have the rights. यस, It's बिल्कुल सही become a बात। very serious issue, यस मैम, यस। you know. तो ये जो हो रहा है, ये क्यों जी। हो रहा है? अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं हम्म। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, which has become a big touristic high point of ओ गुजरात। ओ। तरनेतर फेस्टिवल के बारे में आपने सुना है? तरनेतर फेस्टिवल। यस, नो नो टी मैम। फॉर TARNETAR, तरनेतर। अच्छा अच्छा, आपको पता है तरनेतर, इसमें अच्छा। क्या होता है? क्या होता है मैम? तरनेतर फेस्टिवल जी। इज अ फेस्टिवल विच इज डेडिकेटेड टू शिव जी, अच्छा। क्योंकि शादी के लिए, इमेजिन, शादी के लिए एंड मरण के लिए हम्म। किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास, है। महादेव। तो it is dedicated to Shivji, this festival, and on that particular festival day, all parents who have young children, जी 14 years and above जी। लड़का है, या and लड़की है? 12 years and above लड़की है, जी वो वहां पर सारे मिलते हैं। इट्स अ मीटिंग पॉइंट। जी। वहां पर वो जो यंग बच्चे हैं उनको फ्रीडम दी जाती है कि तुम घूमो, देखो, और अपनी पार्टनर चुन लो। ओके। अच्छा, वो पार्टनर चुन के, द बेस्ट इज स्टिल टू कम, वो पार्टनर चुन के उसके बाद में उनको 1 साल तक साथ में रहने की परमिशन मिलती है। ओ दे लिव टुगेदर फॉर 1 year ओके। टू सी इफ दे आर कंपैटिबल, जैसे आपने बोला ना, इमोशनली, फिजिकली, जी बट इवन कैरेक्टर वाइज, कि वो काम क्या करता है। जी। उसको एक बकरी या गाय, ऐसे एक जोड़ा दे देते हैं, या अच्छा। जमीन का टुकड़ा दे देते हैं कि इसके ऊपर तुम खेती करो करो, तो मिल बांट के करो, करेक्ट स्टार्ट योर लाइफ। करेक्ट। अच्छा, वो 1 साल के बाद में सेम फेस्टिवल डे को अगले साल मिलते हैं जी सब कपल्स। जी। तो अगर they were compatible, if they are happy with each other, that 1 year they felt that ठीक है, हम रह सकते हैं, तो they get married on that day. ओ वाह। अगर उनको लगता है कि नहीं, उनको और थोड़ा टाइम चाहिए, तो 1 और साल दिया जाता।
तो मैम एक बताइए, इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन। अगर नहीं, they can leave that partner and choose a new partner. व्हाट अबाउट द एज, लीगल एज टू गेट मैरिड? वो उनकी अच्छा, ट्राइबल्स, आपको पता है ये ट्राइबल्स जो हाँ, होते हैं उनके अपने रूल्स होते जी जी, ओके 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 हैं, ओके, दे फॉलो देयर ओन रूल्स। जी। उनका लीगल एज है, लड़का 14 साल का होना चाहिए, लड़की 12 साल की होनी चाहिए, ओके ओके, राइट। एंड यहाँ तक कि ही कैन leave that partner if they don't get along. He can say goodbye to and choose a new one. जी जी, आप ये सोचिए कि ये ट्राइबल्स हैं, एंड इफ दे आर सो ओपन, हाँ, ये क्या है, लिव इन ही तो है, और क्या है। बिल्कुल, यस 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 मैम, इट इज। तो आई मीन हमारे देश में ये सब है। हाँ, डू फिर यू हम नो क्या? फॉरेनर्स आर शॉक्ड व्हेन दे कम to this festival. It has become a major tourist high point, this ओके, particular festival. दिस इज वेरी वो लोग इंटरेस्टिंग आते मैम, हैं देखने कि ये क्या हो रहा है, और शादियां वेरी भी होती हैं वहां पर फिर उस दिन, राइट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो दिस इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। हाँ हाँ, मुझे आज ही पता लगा। इवन यू डिड नॉट नो अबाउट इट। जी तो जी ये जी जो है, फिर आपने बोला कि शहरों में एक्सेप्टेबल है। आई एम सॉरी टू से, आई एम फ्रॉम अ बिग सिटी, बॉम्बे। जी, शहरों में भी आपको क्या लगता है दक्यानुसी लोग नहीं है? है, नहीं बिल्कुल बहुत है है। बहुत। इट्स ओनली अ वेरी मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक बहुत ही इवॉल्व्ड तबका है सोसाइटी का जो एक्सेप्ट जो करता है, कि इसको एक्सेप्ट करता है, यस मैम, अदरवाइज दे डोंट, दे डू, यू नो। सही तो सही। ये बात है। आप सोचो कि जो जिस तरह से हमारी शादियां अभी होती हैं, मेजॉरिटी वो शादियां जो हैं जी, कितनी सक्सेसफुल होती हैं और कितनी फेल होती हैं, पता लगता है 6 महीने बाद में भाग रहे हैं डिवोर्स करने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई झगड़े होते हैं। जी अच्छा, जी, अगर नहीं भी डिवोर्स, कोई फैमिली बोलती है अरे डिवोर्स कैसे होगा, ये तो हमारे हमारे हाँ, फैमिली में तो नहीं। नहीं है, तो हाँ, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड हो जाती है। यस यस यस, आई हैड अ मारवाड़ी फ्रेंड, एंड वो जब भी बात करती थी अपने पापा के बारे में, तो कुछ भी बात होता था तो वो बोलते थे त्योहार है, एक साड़ी थारी बसंती के लिए है और एक साड़ी मम्मी के लिए है। ओ एक माय गॉड, कंगन बनाए हैं, एक जोड़ी थारी बसंती के लिए है, एक थारी जो एक हमारी माँ के लिए। ये थारी ओ, बसंती कौन थी? थारी द अदर बसंती वन, कौन थी? She was his secretary in the office with whom he was having an affair. ओ ओहो, Okay, जी and जी, the whole family knew about it. हाँ, वो क्यों? क्योंकि वो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। He would जी, move with international people, travel internationally, और बीवी उसकी बड़ी एक टिपिकल मारवाड़न हाँ थी जो घूंघट हाँ, सर पे वो ट्रेडिशनल, हाँ हाँ, वेरी ट्रेडिशनल। तो उसको वो सोसाइटी में नहीं ले जा सकता था, तो थारी नहीं, बसंती जाती थी, यू नो, राइट राइट थारी राइट, बसंती जाती थी। हाँ, तो ये थारी बसंती जो है वो बहुत सारी मारवाड़ी फैमिलीज में है, आपको तो पता ही होगा, यू आर फ्रॉम द मारवाड़ी कम्युनिटी, यू नो। तो ये सब है। अच्छा, देर इज अ कम्युनिटी इन इन केरला। आपको पता है ओके साउथ में बहुत सारी कम्युनिटीज मेट्रीलिनियल है। वहां एक ओके, कम्युनिटी है नायर कम्युनिटी। जी नायर कम्युनिटी इज मेट्रीलिनियन, और वहां जो डॉटर है दे इनहेरिट द प्रॉपर्टी। ओके, दे जी, इनहेरिट द प्रॉपर्टी, एंड उनकी प्रॉपर्टी ज्यादातर लैंड होती है। हम्म, तो वो लैंड इनहेरिट करती है, और जो उनके वर्कर्स होते हैं, she chooses the best worker amongst them to be her partner, and she grants him entry in the house, and they okay, both live in together without marriage, no marriage, they okay, just live in. She has children from him, everything. Lekin the man is very much under her control. oh
Okay. because the property, she is the malik of the property. ठीक है? सही बात है. अगर उसने कुछ ऊंच नीच बिहेवियर किया, आपको पता है क्या होता है? जब वो काम करके खेतों में से वापस आता है, उसको अपना जूता नहीं मिलता. Oh, He doesn't find his shoes. जी. और वो इधर उधर ढूंढता है, नहीं मिलता. फाइनली वो गेट के बाहर देखता है, और अगर उसका जूता गेट के बाहर है, जी. दैट मीन्स आप बाहर हो, जा सकते हो. Oh my God, very indicative of getting out. Till 50 years ago, this was valid because I know of a lady who was my mother's neighbor who told me that her grandmother never got married. She used to live like that. Oh, But now, दुनिया को देखा देखी, अरे लोग क्या बिल्कुल. बोलेंगे? And she was very embarrassed. First she wouldn't talk to me. जी, When I जी. read about this, so I approached her. She wouldn't talk to me. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता. हमारी तो सब शादियां होती है. देखो मेरी भी शादी हुई है नायर साहब के साथ. मेरी बेटी की भी शादी हुई है, मेरे बेटे की भी शादी. I said, आंटी आप पीछे जाइए, आप मुझे बताइए, मैंने ऐसे पढ़ा है. So then very sheepishly she said that her grandmother was never married, but she lived with a man. Yes, तो acceptable ये thing. है, जी, जी. you know, you will be saving so many heartaches. लोग Yes. 20-20 साल अफेयर चल रहा है. हाँ, They are friendly, they are in जी. love. शादी के 1 साल बाद डिवोर्स हो जाता. बिकॉज जब तुम अफेयर चला रहे हो ना, विदाउट लिविंग, Yes. तुमने कितने टाइम मिलना है? 2 घंटे मिलना है, 3 घंटे मिलना Yeah. है. You तो put your यू best आर foot विथ योर forward. बेस्ट फुट फॉरवर्ड. Yes, yes. और जब हो जाती है शादी 24/7, तो Oh, तुम्हारे but सारे बर्ब्स एंड फार्ट्स आ जाते हैं सामने. yes, वो असलियत है. वो असलियत है. तो वो सारे सामने आ जाते हैं, राइट? उसकी सारी आदतें सामने आ जाती हैं, उसकी चींची चूचू की सारी आदतें आ जाती हैं सारी सामने. आती है. और वो Correct. कहती है कि हाय हाय, आई नेवर बार्गेन्ड फॉर दिस. फिर वो Yes. बात हो जाती है, आप पहले ऐसे न थे, हाँ, हाँ. तुम पहले ऐसी न थी. वो बेचारी, Nothing. वो 2 घंटे मिलना होता था तो टिचमिच करके आ जाती थी, जी, जैसे जी, आज मैं आई हूँ. जी. लेकिन अगर कोई मेरे साथ में रहेगा तो हाँ, हमेशा मुझे थोड़ी ऐसे देखेगा. नहीं 24/7 तो तो पूरा वो जब ये असली रूप. असलियत सामने आती है, जी, जी. तो वो बोलते हैं नहीं, आई डिड नॉट बार्गेन फॉर दिस. That is the thing That which is. can be avoided once you start accepting live-in relationships. और ये भी हो सकता है कि उसके साथ एक तो, आप मुझे एक बात बताइए, ये सेक्स में मोरालिटी साली कहाँ से आ गई? हाँ, ये अच्छा सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज है. कुंती की मोरालिटी कहाँ थी? कहाँ थी? सही बात है. हाँ? किसी कोई उससे बात नहीं करेगा, इस पे बात कोई उसने भी नहीं करेगा, 5 लेकिन पांडवों को एक्सेप्ट किया हुआ था ना? किया था. कैसे एक्सेप्ट किया था? कैसे एक्सेप्ट किया था? करेक्ट, करेक्ट. राइट? फिर स्वयंवर हम्म. कि the girl had the right to choose as per her benchmarks. दैट्स राइट. तो जब हमारा कल्चर ऐसा है, तो हम हम्म. कहाँ पीछे चले गए? हम्म. We have not moved ahead, we have gone behind. बिल्कुल सही बात. सही, बिल्कुल सही कहा. है ना? तो बिल्कुल सही. this is my take on this. मैंने जो पॉइंट्स थोड़े जी. बहुत लिख के रखे थे वो मैंने किया है. बाकी इसके ऊपर हम और भी बहुत जिरे हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है, बट आई थिंक दिस सेशन इज वेरी वेरी इनविगरेटिंग, क्योंकि ये हमको हमारे कल्चर, हजारों साल पुराने कल्चर के साथ जोड़ के हम उसको देख Right. पा रहे हैं. लोग द्रौपदी को खाली सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन अगर और इस पर्सपेक्टिव में देखें तो पता लगेगा कि कितनी अच्छी बात थी. Right. नो. द्रौपदी का जो द्रौपदी. एग्जाम्पल है, अभी हाँ. भी टेढ़ी गढ़वाल में, यू नो, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, जी. मुझे इसलिए पता है बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड अटेंडेड अ मैरिज ऑफ अ अच्छा. पर्सन फ्रॉम दैट एरिया. जी. तो उस एरिया में आपको पता है आज भी हम्म. वन फैमिली में अप टू 5 brothers कैन मैरी ओनली 1 गर्ल. अच्छा, दिस इज अमेजिंग. नेवर न्यू. वो इसलिए
जी, कि वहां पर टेढ़ी गढ़वाल मतलब माउंटेनस एरिया, यस यस यस। तो वहां जो कल्टिवेबल लैंड है, हम्म। टिलेबल लैंड, वो बहुत जी कम है। जी, तो बहुत कम है। सबकी एक एक जोरू हो जाएगी, सबके एक एक जोरू से चार चार बच्चे हो जाएंगे, तो वो लैंड को कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे। हाँ, सो टू implication। अवॉइड दैट, जी, 5 up to 5 brothers can share one wife, one so that लैंड की ज्यादा डिवीजन ना हो, very pragmatic so that solution। सबको सबको पेट भर खाने को मिले। This is not about property and all that, it नहीं is नहीं नहीं, about getting food for every mouth। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो बहुत अगर सही ये बात। सब है, जी जी। और उस फैमिली, दैट बॉय ऑफ कोर्स वाज लिविंग इन द सिटी नाउ इन बॉम्बे, लेकिन उसकी शादी में उसको जोड़ी दी गई गाय और बैल की, जी, इन ओके। द ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे, भाई यस ये यस। लो और हाँ, अपनी जिंदगी शुरू करो। एक्सेलेंट। यू नो देर आर जी, सर्टन फैमिलीज जो एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके नाम का एक झाड़ लगा देते हैं, हाँ। सम फ्रूट बेयरिंग ट्री, हम्म। आइदर अ कोकोनट ट्री और अ मैंगो ट्री, जी जी। या फिर ऐसे कुछ वो लगा देते हैं। हम्म, एंड व्हेन ही इज 14 years old, हम्म, तब तक या सैंडलवुड ट्री, ओके। बिकॉज सैंडलवुड बोलते हैं 14 साल के बाद में उसकी लकड़ी जो होती है वो यूज होती है। जी तो जी। ये जो 14 साल है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्राइबल कल्चर। तो फिर उसको वो दे दिया जाता है कि नाउ यू स्टार्ट योर लाइफ विद दिस, हम्म। जिसको बोलते हैं सीड मनी। ओके अभी ओके। आजकल तुम सीड मनी बोलते हो। तो ये जो है ना, हाउ टू मेक मैरिजेस सक्सेसफुल, हाउ टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रंस लाइफ is not only socially, family wise looked after, but financially and physically also यस यस taken यस। care of। तो ये होता है, ये बहुत सारी लड़ाइयाँ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से होती होती, बिल्कुल सही कहा। है बहुत ना। सही। तो बहुत सही। ये जैसे एंड इफ यू डू रिसर्च, I'm जी, sure you will find many, many more वेरी मच। examples of this। हमारे जो पुराण है, ग्रंथ हैं, what should a wife be like, what should a जी, husband be like, वो तो साफ लिखा हुआ है। लिखा है बिल्कुल सही बात। साफ लिखा, 5 गुण औरत के और 5 गुण आदमी के लिखे हुए हैं कि नहीं। जी जी जी। जी यहाँ तक बिल्कुल। कि बोला जाता है कि एक औरत जो बीवी होती है वो बिस्तर में एक वैश्या की तरह होनी चाहिए, यस यस। ये ये, भी है। हाँ हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। she हर एक should be रोल की like a अपनी mother अहमियत to है। feed him, she should be like यस a sister to be playful with him, she should be like यस। a friend to be able to guide him and so on। you know 5 गुण बिल्कुल बताए गए हैं। 5 है। और ये गुण होने के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। हाँ, If we really want to summarize everything, live-in relationship ensures that if you have these qualities, you carry on further. Otherwise, just move on in your own respective directions and say and thank you. otherwise the divorce courts will be full, जी। and Oh, crime rate will be also, correct. not only divorce courts but crime courts also will be full, because बहुत Yes, सारे crimes हो रहे हैं। बहुत सही। No, you thank know you, ma'am. Thank you very so much. Such a, I must say this session turns out to be very an eye opener kind of a thing, especially for those who look at it with jaundiced eyes. सर हमें ये जो सेशन है ना, जी हमारा जो वीडियो रिप्ले यूट्यूब में जाएगा, वी शुड ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ share it as much as possible, so that जी जी, more we and more must. people, even beyond our Zena group, Yes we yes should yes, try beyond Xena and world. हाँ, सही कह रहे हैं, popularize it and होना share चाहिए। it with more and more people, so that people get an opportunity to see this you know Very rightly said, ma'am. Thank so you very much, ma'am. Thank you very much. नॉट एट ऑल सर। आपके साथ में हम दोनों ने ये डिस्कशन की है, कुछ पॉइंट्स आपने दिए, जी एंड मुझे तो मेरे प्रोफेशन ने बहुत कुछ दिया है, टूरिज्म हैज गिवन मी अ लॉट, एंड that's it. ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई हैव Yes, बिकॉज ऑफ टूरिज्म एंड बिकॉज ऑफ tourism. माय हैबिट। एक मेरी 2 आदतें हैं, जी एक तो ये कि अगर चने की पुड़िया भी खरीदी है तो जी वो जी। मैं कागज उसका जो है वो उसको पढ़े बिना फेंकती नहीं।
वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। या एंड दूसरी बात ये है कि मुझे जी सवाल पूछना बहुत ज्यादा आदत है मेरी। जी, आई एम वेरी क्यूरियस इवन आई टुडे। नो। बोलते हैं कि अभी बच्चे क्यूरियस होते हैं लेकिन आई एम नहीं, स्टिल आप क्यूरियस। ईयर्स। तो यू नो एंड टूरिज्म में तो हम घाट घाट घूमते हैं, तो बिल्कुल लोगों से सही बात। बात करते हैं, उनसे पूछते हैं और ये सब बातें हमें पता लगती हैं, यू वेरी नो। गुड, बहुत। तो नाइट्स, जस्ट साइड ट्रैकिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, इसीलिए मैं नाइट्स बोलती हूँ कि वंडरफुल। लोगों को ट्रैवल जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए मैम, सो दैट सोसाइटी के बारे में पता तो लगे। आई मीन, आई एम हाँ सो जी हैप्पी यू बिल्कुल। आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान की सोसाइटी और उधर उधर की सोसाइटी। भाई कई एक चीजें हैं जिससे हम अनजान थे अभी तक। In fact, that's why how I thank you for this. As an army man, I have traveled all over the places. क्योंकि हम तो 2 साल से ज्यादा एक जगह पे रहते ही नहीं हैं। हाँ So thankfully now I'm retired and settled in Ambala. But otherwise, one has seen these things from very close quarters. और आपका कहना सही है मैम कि हमारे इस वीडियो सेशन को जो लोग देखेंगे तो शायद कुछ लोग और सामने आए विद देयर ओन व्यूज, और इसके बारे में जो धारणा बनी हुई है, यानी एक जो नेगेटिव धारणा बनी वो खत्म हो जाए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लिव इन रिलेशनशिप। इनफैक्ट एज अ पार्टिंग नोट मैं फिर भी आपसे एक सवाल पूछूंगी कि हमने अभी तक प्लस पॉइंट्स दिए, जी प्लस पॉइंट्स दिए हैं, जी। तो क्या आपको इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नजर आता है क्या? नहीं, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैम कि कभी कभी इसमें ये होता है कि दो इंडिविजुअल जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उन दोनों की फैमिली का सपोर्ट, सिंस दे आर अनमैरिड, उनकी बात कर रहा हूँ, फैमिली का सपोर्ट उसमें कमी देखी जाती है। और अ, दूसरा ये भी होता है कि अगर उन दोनों में से किसी एक ने जिम्मेदारी निभाने में कोताही करी है, यानी कमी करी है, तो वो भी उसका एक होता है। बट अगेन उसमें फिर उसका एंड रिजल्ट यही होता है कि पार्ट दे पार्ट वेज। बाकी नहीं तो मेरे नहीं ख्याल से कोई। नहीं, वो बात तो सही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है तो जी प्रॉब्लम हो जाएगा, एक ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो प्रॉब्लम हो जी जाएगा। जी जी आई जी एम लुकिंग एट अ डिफरेंट एंगल। मैं, मेरा जी जो सवाल था वो डायरेक्टेड एट अ डिफरेंट जी। एंगल कि अच्छा अच्छा। इसके हमने बेनिफिट्स देखे हैं जी। कि देयर इज यू नो it can reduce crime, it can reduce यस। divorces, it can हाँ, lead कॉम्प्लिकेशंस कम हो to जाता है। a सही more बात है। happy and fulfilled बिल, relationship। बच्चे बिल्कुल। जो हैं वो भी खुश होंगे, जी whatever जी whatever। जी जी। लेकिन क्या इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट है क्या? लिव इन में हाँ, नेगेटिव मुझे पॉइंट क्या? मु- मुझे तो उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता मैम। मुझे कुछ भी नहीं कुछ दिखाई देता अनफॉर्चुनेटली। यू नो हाँ, आई थिंक वी शुड कीप दिस ओपन टू द व्यूअर्स व्यूअर्स, हाँ, वी कि शुड गिव इट। आप दोनों तरह कमेंट कर दोनों सकते हो, तरफ। गिव अस अ जी। फीडबैक, प्रो हाँ, एंड कॉन, यस मैम, यू नो। बिल्कुल सही बात तो है। आप नेगेटिव भी बता सकते हो। बता सकता है अब बिल्कुल। आज की सोसाइटी के हिसाब से, आज की, हम्म। कि अगर जी। किसी ने लिव इन रिलेशनशिप किया है और उसमें हम्म। ब्रेकअप हो गया है और कहीं और शादी करनी है, तो जी। उसमें ये हो जाता है जी लड़की का नाम बदनाम हो गया, हाँ लड़की तो उसके साथ रह रही थी जी, हाँ हाँ लड़की तो जी ऐसी है कैरेक्टरलेस। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। मुझे फौरन ठप्पा लगा देता ये है, स्टैम्प। एक नेगेटिव पॉइंट नजर आता है, वो भी बिकॉज ऑफ सोसाइटी एटीट्यूड, बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बिल्कुल। राइट, बिकॉज ऑफ सोसाइटी एटीट्यूड। यस। एंड एक और जो पॉइंट नजर आता है कि समटाइम्स यू नो दोनों जने, इट कुड बी द फीमेल, इट कुड बी द मेल, जी वो जी। साथ भी नहीं रह सकते और हम्म। ना ही एक दूसरे को अलग जीने देते, हाँ, ओ वो बड़ी यू नो। प्रिकेरियस है। उसकी हाँ। बदनामी करते फिरेंगे, अरे ये इसने तो ऐसे किया था इसलिए मैं अलग हो गई, हम्म इसने तो ऐसे किया था इसलिए मैं अलग हो गया, एंड जी सो ऑन। तो एक जी दूसरे जी। की बदनामी जहर घोलते हैं, जहर घोलती है, वो ठीक नहीं है। you बस know। बहुत So it is टॉक्सिक not रिलेशनशिप। only society has to हम्म accept the live-in हम्म relationship, but हम्म। even those who are involved, they जी, should also have a very positive attitude कि बिल्कुल अगर सही। हम नहीं you know if नहीं, we वर्कआउट नहीं हो cannot रहा है। live together, if we are not compatible, तो हम्म। part as friends, यस। जहर मत घोलो। जहर मत को, बहुत सही कहा मैम।
है ना, Absolutely, absolutely. जहर मत घोलो। तो जी ये मुझे एक दो चलते चलते मुझे ये 2 पॉइंट्स जी नजर आ रहे नहीं हैं। नहीं, वेरी बहुत लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं मैम, बहुत अच्छे पॉइंट्स। लेकिन आई एम श्योर देयर आर अदर, यू नो ये कहा जाता है कि मैन एंड वुमन लुक एट रिलेशनशिप वेरी डिफरेंटली। जो मैन है वो पहले सारा कुछ देखता है, करेक्ट, देन ही फॉल्स इन लव। यस जो वुमन है वो पहले बेचारी वो इतनी इमोशनल हो जाती है, वो पहले शी फॉल्स इन लव एंड देन शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट इट। यस 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 तो जिसकी सही वजह बात। से हाँ, sometimes problems हो जाते हैं। हो So जाती this is बिल्कुल the सही। other factor अदर where फैक्टर। हमें जब हम रिलेशनशिप, दिस इज फॉर द कपल, कि जब कपल, आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हो तो हम्म इट इज वेरी इजी टू से कि हम्म, हाँ ठीक है वो स्मोक करता है मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन चलेगा कहना। चले अरे तुम हाँ, सोचो, वो 2 घंटे तुम्हारे पास में होता है, एक आधा सिगरेट उसने पी लिया तो तुम टॉलरेट, लेकिन जब 24/7 तुम साथ में रहोगे और उस फिर कमरे में से बदबू आएगी, हाँ यू नो, फिर उसको या उसके हाथों में एक्सेप्ट, व्हेन ही इज क्लोज टू यू फिजिकली, या और या उसमें उसके मुंह से या उसके हाथों से आएगी, बदबू आएगी, फिर क्या वो करोगे? एक्सेप्टेंस, हाँ बिल्कुल सही तो बात है, वो वो एक्सेप्टेंस। तुम विल यू, देखो पॉजिटिव पॉइंट्स जो है ना वो जी हम, जी, वो तो बोनस की तरह आते हैं, आते हैं। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हम्म, मुझे याद है एक किसी का ना, हम लोग प्रोफाइल बना रहे थे, शादी करवानी थी उसकी, तो जी उसका बड़ा एक योलोजॉट योलोज योलॉजिकल प्रोफाइल बना उसकी, यूरोजिक, ओके। उसको योलोजाइज कर दिया था। वो तो ऐसा हम्म है, वो तो इतना अच्छा है, फलाना है, ढिमका इज वेरी वेल एजुकेटेड, दिस हम्म सब कुछ। जब हम्म, उसने वो पढ़ा तो जी मुझे बोलता है तो वो बोलता है लाओ मेरा प्रोफाइल मुझे दो, द फर्स्ट थिंग प्लीज राइट दिस इज अ बर्पर एंड अ फाटर फैमिली। वाओ, बीइंग सो फ्रैंक, ओके, you know, एक्सीलेंट। please write that. असलियत है, लिख दो पहले ही, और क्या। So you know, I mean, इतना कैंडिड होना पड़ता है क्या? तुम वो टॉलर, अच्छे जो गुण है वो तो सब लोग लैप अप करेंगे, करते हैं, जो एम्पलीफाई करते हैं नेगेटिव उसको। पॉइंट्स हैं क्या तुम उसके साथ में 24/7 जी सकते हो क्या? हाँ, तुमने वो डिसाइड करना तो वो डिसाइड, और ये इसमें हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में। या तो है। राइट, कहते हैं आते सुधार लेते हैं, या तो ये होता है कि आते सुधार लेते हैं अपनी, क्योंकि 24 घंटे राइट, साथ रह रहे राइट, हैं। राइट। और या अगर फिर नेगेटिव पॉइंट है तो हाँ, दूसरा इंसान कब तक वो नेगेटिव पॉइंट अपने सैक्रिफाइस कर सकता है, यस, या थ्रेशोल्ड, जो दोनों के थ्रेशोल्ड अदर पता लग जाता पार्टनर है। है वो कितना टॉलरेट कर सकता है, दोनों में से, यू नो। That- आजकल प्रोफेशन के ऊपर भी डिवोर्स हो जाते हैं कि बिकॉज द होता है, वुमन इज गेटिंग प्रमोशन या बिकॉज द मैन इज गेटिंग प्रमोशन, वो कहती है जी आप हाँ जाओ, मेरा तो काम यहाँ है, हाँ, मैं नहीं वो छोड़ भी, सकती, हाँ इवन आई हैव एन आइडेंटिटी, मेरी भी हाँ, आइडेंटिटी है। तो यस, ये सब जो चीजें ये हैं भी, वो ये सब कंसिडर करने के लिए लिव इन लिव इन रिलेशनशिप रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत सही कहा मैम आई थिंक आपने। आई थिंक यू नो द वी, थिंग इज दैट लोग ना, द वर्ड इंटेलेक्चुअल आजकल बड़ा फैशनेबली यूज होता है, आई नो, यू नो, कि सो एंड सो इज एन इंटेलेक्चुअल। वो स्यूडो इंटेलेक्चुअल होता है इंटेलेक्चुअल एक्चुअली नहीं, में। इफ द पर्सन इज नॉलेजेबल, मतलब बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको नॉलेज है, इंफॉर्मेशन बहुत है, सब्जेक्ट्स की जानकारी बहुत है, तो वो नॉलेजेबल है, वो वेल लर्नेड है, वेल रेड है, वेल ट्रैवल्ड यस, है, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं। इंटेलेक्चुअल वो होता है जो हर चीज के बारे में उसके अंदर देखकर सोच सकता है सोच और सकता उसके है, प्रोज एंड कॉन्स देख सकता है। सही तो बात वो आजकल ओ, यू नो, आई लाइक टू ओनली मिक्स अराउंड विद इंटेलेक्चुअल्स लाइक माई सेल्फ, ये एक बड़ा हाँ हाँ, फैशनेबल वर्ड हो गया है, ये फैक्ट आई नो दिस। तो है ना। तो सही कहा आपने। ये जब बातें जो नजर आती है ना, जो हम लोग जी डिस्कस कर रहे हैं, फॉर जी, दिस यू नीड टू बी अ थिंकर, ठीक, अ करेक्ट, हार्ड कोर थिंकर, उसके अंदर घुस के कि मैंने ऐसे किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मैंने ऐसे किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। बिल्कुल। और ये दोनों पार्टनर्स आपस में मिलजुल के बैठ के करें, यस, वन रिक्वायर्स अ लॉट यस, ऑफ। यस। तो थैंक यू आई मैम। थिंक वी हैव ये इट्स नाउ 6:30,
Yes, I 5:30 touched हमने upon. शुरू किया था. जी I जी, think we've almost 1 hour. just been spot on. Yes, और अच्छा लगा. तो आगे same here, bye. आगे का एक टॉपिक है. जी जी. राजीव जी, you can now stop the Yeah, recording. recording. हाँ. बहुत हो